વડોદરાની MS યુનિવર્સિટીમાં સોમવારથી આર્ટ્સ ફેકલ્ટીમાં ઇન્ટરનલ પરીક્ષા શરૂ થનાર છે, જ્યારે બેઠક નંબર જનરેટ ન થવાથી FYના 1500માંથી 500 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા નહીં આપી શકે. માઇગ્રેશન સર્ટિફિકેટ જમા કરાવવા 15 તારીખ આપી હોવા છતાં પણ બેઠક નંબર જનરેટ કરવામાં નથી આવ્યા. યુનિવર્સિટીની આર્ટ્સ ફેકલ્ટીમાં ફરી વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા ન આપી શકે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. સોમવાર તારીખ 13 માર્ચથી આર્ટ્સ ફેકલ્ટીમાં FY, SY, TY અને MAની ઇન્ટરનલ પરીક્ષાનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે, જેમાં FYBAના 1500માંથી 500 વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે જેના બેઠક નંબર હજુ સુધી જનરેટ થયા જ નથી, જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા ન આપી શકે તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. આર્ટ્સ ફેકલ્ટીના ડીન દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને 15 માર્ચ સુધી માર્ગદર્શન સર્ટિફિકેટ અને ટ્રાન્સફર સર્ટિફિકેટ જમા કરાવવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી હતી, છતાં 15 માર્ચ સુધી વિદ્યાર્થીઓ આ સર્ટિફિકેટ જમા નહીં કરાવે તો સેમેસ્ટર પરીક્ષામાં નહીં બેસી શકે એવી પણ તાકીદ કરવામાં આવી હતી. FYBA ફર્સ્ટ યર સેકન્ડ સેમની આજથી એક્ઝામ ચાલુ થઈ ગઈ છે. એમાં 1500 વિદ્યાર્થીઓ છે, જેમાંથી 700 વિદ્યાર્થીઓને એક્ઝામ હજુ આજે નથી અપાઈ. તે તમે જોઈ રહ્યા છો, 12 વિદ્યાર્થીઓને એમનેમ બેસી રહ્યા છે કે બે સર્ટિફિકેટ નથી આપી રહ્યા. તો એ લોકોએ અગાઉથી જાણ કરવી જોઈએ કે આટલા સર્ટિફિકેટ કરવાના છે. જાણ કરી હતી તો કોઈને એટલું ધ્યાનમાં નહોતું આવ્યું સ્ટુડન્ટ્સને કે આ સર્ટિફિકેટ જમા કરાવવાના છે. એક ડોક્યુમેન્ટના લીધે આજે અમને એક્ઝામમાં બેસવા નથી મળ્યું, અને જ્યારે અમે બધા ડોક્યુમેન્ટ આપતા હતા ત્યારે કોલેજવાળાએ ડોક્યુમેન્ટ લીધા નહીં, અને તો બી એ લોકોએ પહેલાં સેમની એક્ઝામમાં એવો કાયદો નહોતો કાઢ્યો. પહેલાં સેમની એક્ઝામ અમને આપવા જ દીધી અને બેસવા બી દીધું હતું. આજે મારું કોરનું પેપર હતું, પણ આજે મને પેપર આપવામાં નહીં મળ્યું. મેડમને અમે રિક્વેસ્ટ કરી છે કે અમને એક્ઝામ આપવા દો, તો એમને એવું કીધું છે કે એડિશનલ એક્ઝામ અમને આપવા દેશે. આજના વિવાદમાં એવું હતું કે ત્રણ પ્રકારના ફોર્મ સર્ટિફિકેટ હોય છે, તો એમાંથી માઇગ્રેશન સર્ટિફિકેટ હોય કે TC સર્ટિફિકેટ હોય કે એ સર્ટિફિકેટમાં ગેપ સર્ટિફિકેટ હોય, એ સર્ટિફિકેટ જેને જમા નહોતા કરાય એ લોકોને એક્ઝામ આજે આપવા દેવામાં ના આવી. આજનું પેપર બધાનું મેન કોરનું પેપર હતું, તો પેપર આપવા દેવામાં ના આવ્યું. અને એમાં એવું છે કે જે તે સમયે જ્યારે એડમિશન ચાલુ થયા ત્યારે એમને એડમિશન વખતે જે અમુક ડોક્યુમેન્ટ બાકી હોય એ ડોક્યુમેન્ટ એમને જમા કરાવવા જોઈએ, પણ એ જમા કરાવવા માટે લોકો ગયા હોય ને ના થાય, કોઈ કારણોસર કંઈકનું કંઈક હોય તો એમને એ સમયે 1 મહિનો કે 2 મહિનાના આપવાનો હોય, આપ્યા હોય પછી જ્યારે ના જમા કરે તો એમને એડમિશન કેન્સલ કરવું જોઈએ. તો એની જગ્યાએ એમને એડમિશન કેન્સલ નહીં કર્યું કે પછી એમને ફર્સ્ટ સેમિસ્ટરની એક્ઝામ પણ આપવા દેવામાં આવી. તો ફર્સ્ટ સેમિસ્ટર પછી જ્યારે સેકન્ડ સેમિસ્ટરની એક્ઝામનો સમય આવે છે ત્યારે તમે આવું કહો તો છોકરાઓને આટલું તો કોઈ યોગ્ય ના કહેવાય. તમે અમને રજૂઆત કરતા શું જવાબ? અમે એમને ડીન સામે અમે રજૂઆત કરી. ડીન મેમે એવું કીધું છે કે તમે એડિશનલ એક્ઝામ આપવા દેવામાં આવશે જ્યારે તમે આ બધા ડોક્યુમેન્ટ જમા કરાવી દેશો ત્યારે. પણ મેન આજનું પેપર જેનું મિસ થયું છે આપવા દેવામાં આવશે બરાબર. જેમને તૈયારી આટલા ટાઈમથી 1 વર્ષથી જે લોકો 6 મહિનાથી તૈયારી કરતા હોય વિદ્યાર્થીઓ, તો એમને હવે આજે ના આપવા દે તો એ લોકો તો આ બધા અમુક છોકરીઓ રડ્યા અને આ તે બધું બહુ ચાલ્યું છે આજે. बादल ठाकुर. जैसे ये स्टूडेंट बता रहे हैं 500 से ज़्यादा स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, पूरा ये क्या इश्यू हुआ है? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस वाइटल क्वेश्चन टू मी. आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रखा है. आपके माध्यम से मैं बच्चों को भी मैसेज देना चाह रही हूँ. जब एडमिशन की प्रक्रिया होती है फर्स्ट ईयर में, या बच्चा सेकेंड ईयर में जाता है, थर्ड ईयर में जाता है, वो ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई करता है. तो जो पहला स्टेप होता है, बच्चा रजिस्टर करता है. जब बच्चा रजिस्टर कर लेता है, फिर उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट्स उस पर जैसे जैसे उसका खुलता जाता है उस पर डालता चला जाता है. इस साल 2022-23 के सेशन के अंदर जो कि पिछले वाला सेशन था, उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस बच्चों को भी आए और हमको भी आए, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग भी नहीं था, छोटी सी जगह पे हम करने की कोशिश कर रहे थे, है ना. तो चैलेंजेस आए. ऑनलाइन में भी चैलेंजेस थे, ऑफलाइन में भी चैलेंजेस थे. ऑनलाइन में जब चैलेंजेस थे, जब बच्चों ने पोर्टल कर दिया और उसके बाद हमने वेरीफाई किया, तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि जो जगह थी उस पर खाली पेज लगा दिया, है ना. जब इम्तहान आता है, क्योंकि एग्ज़ाम सेक्शन और एकेडमिक सेक्शन वो धीरे धीरे वेरिफिकेशन फैकल्टी वाइज करता है. जब ये खाली कागज़ उनके लगे हुए आए तो हमें प्रॉब्लम आया, क्योंकि हमने बच्चों को एग्ज़ाम देना अलाउ कर दिया था, उन्होंने फ़ीस जमा कर दिया था, लेकिन जब डॉक्यूमेंट उनका आया तो आखिरी रिज़ल्ट में उनका रिज़ल्ट रोका गया क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं था. बच्चों के लिए कहा था जिन्होंने हमें एप्लीकेशन लिख के दिया था कि हमारा बोर्ड ये कह रहा है आप अपने हाथ से कलेक्ट करें. उन्होंने कहा कि हम नहीं जा पाए, हम जाके ले आएंगे. तो हम उनके लिए भी है. तो ये तो कन्फ्यूजन है कि नहीं 15 तारीख लास्ट डेट है. 15 तारीख लास्ट डेट नहीं थी.
फुल एंड फाइनल डेट एडमिशन से लेके इनका PRN जनरेट हुआ था 9 सितंबर को। अब आपको 9 सितंबर से कभी तो देखना चाहिए था, आप अपना पोर्टल नहीं देखते, आप अपने दोस्तों की बात नहीं सुनते, क्योंकि इनके लिए जो बच्चे MA फाइनल MA के जो बच्चे होते हैं या 3rd ईयर के बच्चे होते हैं वो इनको गाइड करते हैं, उन बच्चों को भी आप नहीं सुनते हो। आज आपने अगर देखा होगा जब भीड़ था आपने देखा होगा कि स्टूडेंट वॉलंटियर्स खड़े होकर उनको कह रहे थे, हेल्प कर रहे थे, सीनियर स्टूडेंट्स उनको हेल्प कर रहे थे, स्टाफ हेल्प कर रहा था, मैं ऑफिस के अंदर बैठी हुई थी, हमारे ऑफिस बियरर सब काम कर रहे थे, है ना। तो मैं आपके माध्यम से बच्चों को ये कहूँगी कि अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, और सबसे इम्पॉर्टेंट है थैलेसीमिया का, क्योंकि थैलेसीमिया की रिपोर्ट अगर उन्होंने अपलोड नहीं की है ना, ये गवर्नमेंट का मैंडेट है, तो एंड सेमेस्टर में फिर से ये वाली प्रॉब्लम की संभावना होगी। और ऐसे कितने बच्चे निकलेंगे, क्योंकि आपने नंबर पूछा है थैलेसीमिया वाले, मैं जहाँ तक मान के चल रही हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर तो मैं शाम को ही बता सकती हूँ, अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 150-200 बच्चे से ऊपर ही होंगे, 150-200 से कम नहीं होंगे। पास होना फेल होना जो भी है वो अलग चीज़ है, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, आपकी डिग्री नहीं मिलेगी, उसकी एक प्रमाण तरीके से रूल्स होते हैं। ये 2021-22 का है, अब 2000 कोविड के बाद, मतलब जब मैं अपने डीन होने के दौरान आपको बता रही हूँ, 2022-23 में हमें लगा कि बच्चों की परेशानी हमें सॉल्व करनी है, सामने बैठ के सॉल्व करनी है। हमने उनको ऑफलाइन एडमिशन में बुलाया, उन्होंने किया। कई तरीके की समस्याएं, क्योंकि आज का प्रश्न क्योंकि स्पेसिफिक है, उसी को मैं जवाब दूंगी। अब क्या होता है कि उनको जो रूल्स एंड कंडीशंस होते हैं उसमें क्लियरली लिखा होता है कि आप अपना पोर्टल विजिट करते रहो लगातार, आपको वहाँ से एकेडमिक सेक्शन और उससे आदेश आएंगे, और वो निर्देश जाते रहते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का ऑफिस बच्चों को और परेशानी नहीं हो, हमारी तरफ से भी मेल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उसका रिकॉर्ड है। एक सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी है, क्योंकि अगर अपने पीछे सेमेस्टर का देखा हो तो ये सीट जनरेशन का प्रॉब्लम आया था, उस वक्त भी उन बच्चों को हमने कह दिया था अपना कागज करो, लेकिन 6 महीने के अंदर करना होता है। चलिए, बच्चे दूर से हैं, साउथ इंडिया से है, उड़ीसा से बच्चा है, बिहार से बच्चा है, तो बच्चों की एप्लीकेशन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैडम ये परेशानी हो गई, हमने ये चीज़ किया, है ना, लेकिन फिर रिजल्ट आ रहा हुआ। तो अभी हमको अब इस वाले सेमेस्टर में, क्योंकि तुरंत अब हम एंड सेमेस्टर में जाएंगे कि 2nd ईयर में जब वो बच्चा है उसको कोई परेशानी हो, तो उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं आए। बट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, बच्चों को अपना 12वीं का सर्टिफिकेट लगाना होता है, जो पहली चीज़ होती है फर्स्ट ईयर के लिए। आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना होता है, आपको आपका गैप सर्टिफिकेट लगाना होता है, थैलेसीमिया रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अब जो थैलेसीमिया रिपोर्ट है वो प्रॉब्लम करती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का मैंडेट है। थैलेसीमिया की रिपोर्ट आप रेड क्रॉस से करा सकते हो, यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर से कराते हो, बहुत सारे बच्चों ने वो नहीं कराया। अब आप ये देखिए, थैलेसीमिया आपको पता है कि मैंडेट है ना, आप नहीं करा रहे हो उसको, आपको रिमाइंडर्स आ रहे हैं, कैंप हो रहा है, आपको जो है वॉलंटियर ग्रुप्स में मैसेज भेजा जा रहा है, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप रखा हुआ है इसमें हमारा एक वॉलंटियर ग्रुप है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। हाँ, मैं आपको वही बता रही हूँ, तो उन तक जो है जाते हैं। अब जो हमारी कल शाम की जो यादी है, और ये यादी हमको जो रात के हमने 11 बजे लिया कि कल रात के 8 बजे तक कितने थे, वो जो थे बच्चों की यादी अपने पास है। अब हमारे पास जो बच्चों के आए थे माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि फ्राइडे तक आए थे, क्योंकि सैटरडे छुट्टी थी, पर बच्चों के लिए मैं खुद सैटरडे के दिन यहाँ पर बैठी थी, और ऐसे करके 125 बच्चों की यादी इसी कंप्यूटर पर बैठ के मैंने तैयार कराई। वो हमने अपने हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट को भेज दिया, वॉलंटियर ग्रुप्स में बच्चों को भेज दिया, तो उन बच्चों को क्लियर है कि उनको परीक्षा देनी है। अब ये जो माइग्रेशन गैप सर्टिफिकेट, थैलेसीमिया नहीं, इनका जो था बच्चों को ये था कि हम 15 तारीख तक करें। अब इन 15 और जिनके बच्चे नहीं आए हैं वो ऐसे होंगे 50 से 60। तो आपने 500 की जो फिगर दी है, कोई मतलब किसी न किसी कैटेगरी में मिला के आपके पास ये जो है 500 का फिगर आ रहा है, क्योंकि हमने पहले से ही इनको जारी कर दिया था। इन बच्चों को पता है कि अब एडिशनल एग्ज़ाम, क्योंकि 27 तारीख से हम एक एक स्टेप पे कॉशन ले रहे हैं। एडिशनल में ये बच्चे बैठेंगे, इनका सीट नंबर जनरेट होगा, क्योंकि सीट नंबर जनरेट होता है जब इनका मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो 30 मार्क्स का होता है
उसका आंसर उसके मार्क्स उसमें लिखा जाता है, वो कंप्यूटर के ऊपर एंट्री होता है। अगर आप अलाउ कर दो और वो उसको नहीं एक्सपोर्ट करता है, एंड सेमेस्टर में जाके बच्चों का रिजल्ट क्या हो जाता है, आरआर हो जाएगा, क्योंकि 30 नंबर तो आए नहीं, मिसिंग मार्क हो गया, तो उन बच्चों का रिजल्ट आउट होगा। तो हम ये जो हमारा सिस्टम है इसको हम और बेटर कर रहे हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में हम थोड़ी अच्छी उस पर पहुँचे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो टीम काम कर रही है ना, हमारा टारगेट है कि 0 एरर रहे, लेकिन फिर भी ह्यूमन एरर अगर हो जाती है तो टीम लगातार काम कर रही है। मैं आप सबका धन्यवाद दूंगी कि आपने ये प्रश्न रखा और ये बात बच्चों तक पहुंचाइए कि अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं सबमिट होते हैं तो जो है ना, जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो जो है सही डाटा एक्सट्रैक्ट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, और लास्ट में एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी भी बच्चे को एग्ज़ाम देने से नहीं रोका जा रहा है, बच्चों को सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आपको एक परीक्षा आज हो गई है, दूसरी परीक्षा